Hello and welcome back everyone to chemistry classes. So we are continuing with our series of quantum chemistry. In the first video where we introduced quantum chemistry, actually we gave credit to Bohr for giving quantum chemistry to us because it was Bohr who postulated that there should be a boundary condition for an electron and an atom. And once you introduce a boundary condition, you actually are introducing some quantization into a system. So it was Bohr who introduced the principal quantum numbers. Then, along with him, other theories came wherein we got azimuthal quantum numbers, we got magnetic quantum numbers, and spin quantum numbers. We also learned that spin quantum number as we say that there is we cannot visualize spin cannot be anti-clockwise or clockwise. There are two spins of electron. Similarly, photon has three spins. Now since it has three spins, we cannot visualize what kind of spins it will have. If we were to talk of anti-clockwise and clockwise, there were only two possibilities, but photons has three. This was a thing which we discussed, and we discussed how we are moving towards quantization. Basically, electron by then, when Bohr postulated his theory, electron by then was basically uh, thought to be only a particle. But later on, uh, De Broglie, what was obtained is that along with along with being a particle, the electron is also a wave. Okay, so it is not that it is only a wave. So we have to be very uh, clear on to our understanding of this very concept. See, when we are seeing some bullets, अगर मैं किसी bullet की बात करूँ, if you are seeing a bullet, so or if you are seeing in our classical thing, okay, when we see a bullet, it is largely a particle. Okay, it will have some wave character associated with it, but that will be negligible wave character, and it will not be observed. Either for naked eye or any other instrument which we have, it will never be observed. The wave character of a bullet. When we talk of photons, see, photons have a lesser mass compared to electron. So a photon has a very less mass, and since it has a very less mass, it is predominantly a wave character. It does have a particle electric character because we're having this photoelectric effect, but it is predominantly a wave. Okay, it was thought to be classically a wave, but later on it came out it is also a particle, but predominantly it is a wave. Similarly, when we talk of electron, it is it behaves like both. This is because it is having such a mass. इसका mass ऐसा है intermediate mass है कि it is behaving like both as a particle and a wave. Okay, so you cannot say that since there is de Broglie and electron is associated with a wave, that does not mean that it is associated only with a wave. It is particle also. This is one thing which we have to keep in mind. So this is the thing where we skipped our first part. We introduced that instead of uh, moving in a normal circle like this, like a particle, electron is basically moving like a wave around the proton. Okay, it is like a wave. So this is one thing which we study. Now, what we have to proceed is that since all our understanding, all our understanding of atom was based on particle. Now, since we are shifting to a wave, we need to know how should we mathematically see wave. Okay, हम wave को analyze करेंगे. What are the possibilities of what are the possibilities which can happen when electron is behaving as a wave? Okay, so we are shifting to the quantum wave, electron as a wave. So before we shift and we talk truly onto that, we need to know that अभी हमारे पास constraints क्या क्या हैं and how should we approach. ऐसा नहीं है कि I won't lead you directly to the Schrodinger wave equation, uh, because after you introduce, you go to the Schrodinger wave equation. But this is not I am going to do. I am going to tell you what are the constraints which are required. So see, when you talk of electron as a wave, when it is a wave, and to define a wave. So if this is a wave, supposedly this is an infinite wave. Okay, and to define a wave, what all things I have to see? See, it is I've drawn this in a two-dimensional plane, but you have to imagine a wave like this.
imagine my hand here, my hand here, and you have to imagine a wave like this. So it is associated with a plane, xy plane, and a z direction. So you have to assume that it has all the three coordinates. Okay. So once you are assuming that at a particular point it will be having a three coordinates x, y, z. Okay. Plus, what is the important thing about the wave is that a particle which was here, since it is moving like a wave, it may now by one time the wave may change like this. Okay, now the particle will be here. Okay, so since the wave is propagating like that, particle may be one time at the crust, at a trough, it can move forward. So it can, since it is a moving wave, it is an infinite wave. It can move forward. It can go anywhere. So in order to define uh, all the coordinates, to know the position of a particle in a wave, we need to know the coordinates, the x, y, z coordinates of the space. Plus, we need the time coordinate also. Okay. So one thing which is important in wave is that along with the space, you need to know the time coordinate. Because unless you know the time coordinate, it will be difficult for you to judge the position of the particle or the wave, whatever you are thinking of. So we need both space and time coordinate, and we have a classical wave equation. Classical wave equation. If you look into the mathematical equation of that classical wave equation, you will find that it will have all terms. It will have x, y, z coordinate, and it will also have time as a one of the coordinate. We are not jumping directly to that, but this is one thing which you need to learn is that along with space you need time. But the problem here is that it will become very complicated. Okay, it becomes very complicated because time is required to predict where it will be at after some time. But since there is time into it, it becomes very complicated. So our main aim will be right now is to first just talk of the space coordinate and then include time. Okay. So what will we be having? Okay. Draw it again. So what will we be having is two type of equations uh, to define a wave or to define a mathematical characteristics of a wave. First is a time independent. Okay. Time independent equation, and that is given by Schrodinger. So it is a independent Schrodinger equation. And the time dependent one. So second thing will be the time dependent equation. Okay. So first we'll be studying time independent because it is easier to know. And once we know the time independent, we'll basically make our coordinates time independent. We'll study it, and then we'll implement the time coordinate, and then we'll get to know what are the things which are possible. So this is one thing which how we have to proceed. So we are only right now thinking of the space. We will be thinking of the time later on. Okay, now let us see कि अब हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. अभी देखिए इट इज नॉट वेरी इजी क्योंकि अभी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो वेव की तरह इट इज मूविंग लाइक अ वेव अराउंड द प्रोटॉन. So it is not easy for us to derive a mathematical equation for it. Okay, circular wave, it is very difficult for us to derive a equation for it. So what we will do is we'll understand the fundamentals of deriving an equation. Okay, so instead of a circular wave, we'll be talking of a straight wave. Okay, and then when we know yes how a straight wave acts, then we will increase the coordinates of the wave. We'll be increasing that it will now suppose it is moving in a 2D box, the wave. Now then we'll be increasing it to the 3D box. Then we'll assume that it is behaving like a circle. Then we'll go exactly to the atom of hydrogen atom or koi bhi atom. So then we'll move to that. So now whatever task is to simplify it. Okay, simple equations पढ़ना शुरू करो पहले. Okay, and why are we doing it so? Because see, when we're talking of the quantum, we will not only talk of electron. Generally,
we started with the electron because it was because of the electron that the wave nature of subatomic particles came into discussion. But we will not only talk of electrons, we will talk of atoms. We can talk of atoms, we can talk of molecules. Okay. सो अभी मैं इसलिए आपको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. व्हाई इट इज नीडेड टू सिंप्लीफाई इज क्योंकि सर्कुलर पढ़ने के लिए सिंप्लीफाई करना है. और क्यों करना है? क्योंकि जरूरी नहीं है सभी सब एटॉमिक पार्टिकल सर्कल सर्कल वे में घूम रहे हों. इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, सर्कुलर और इलेक्ट्रिकल पार्ट जो भी है वो अज्यूम करता है. बट एटम्स तो लीनियरली मूव कर सकते हैं, है ना. मॉलिक्यूल्स भी तो लीनियरली मूव कर सकते हैं. ठीक है. तो इसीलिए हम ये भी पढ़ेंगे सो दैट वी गेट टू नो अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एज अ वेव आल्सो. एंड प्लीज डू नॉट कंफ्यूज कि इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो एटम वेव नहीं होगा, मॉलिक्यूल वेव नहीं होगा. एटम और मॉलिक्यूल्स आल्सो हैव वेरी स्मॉल वेव, स्मॉल मास. Okay, they are also associated, they will have a predominant particle character but they have significant wave character associated with them. Okay, so and इसका एक एग्जांपल बहुत बढ़िया है. हमने जब इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव इस्टेब्लिश किया था, बेसिकली जर्मर एक्सपेरिमेंट है. ठीक है. इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, विल बी स्टडिंग व्हेन वी स्टडी द हाइड्रोजन एटम अगेन. सो बेसिकली क्या किया है कि जर्मर एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट किया है थ्रू अ डबल स्लिट. ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है. सो व्हाट दे डिड वाज दे bombarded electron through two slits, the two spaces है, and this is a detector which detects the electron. And what they got was that a wave pattern, मतलब पहले तो यहाँ पर आया like this, some wave pattern. Okay, which is possible only when electron is waving as a wave. अगर वो पार्टिकल बुलेट की तरह वेव की तरह बिहेव कर रहा होता तो ऐसा हमारे पास रिजल्ट नहीं आता. ओके, तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये आया ही आया. तो इलेक्ट्रॉन का तो हमें पता चल गया कि इट इज अ सिग्निफिकेंटली अ वेव करेक्टर, इट इज शोइंग अ सिग्निफिकेंट वेव करेक्टर. सिमिलरली व्हाट दे डिड वाज, हमने कार्बन के इलेक्ट्रोप्स पढ़े हैं. इलेक्ट्रोप में एक आता है बकमिंस्टर फ्लोरेंसिस, और उसमें ही एक फ्लोरेंसिस है C60. ओके, C60 बेसिकली एक सर्कल की तरह हुआ. बकमिंस्टर सर्कल की तरह, इट इज अ स्फीयर. ओके, पेंटागनल और हेक्सागोनल शेप्स में होता है वो. बट अज्यूम इट इज अ स्फीयर. तो मतलब आप उसको बुलेट की तरह फेंक सकते हो. इफ यू जनरेटिंग C60 फ्रॉम एनी रिएक्शन, तो यू कैन बेसिकली थ्रो इट देम एज बुलेट्स, एज जैसे इलेक्ट्रॉन्स फेंक सकते हो वैसे आप C60 भी फेंक सकते हो. तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उस एक्सपेरिमेंट में सेम पैटर्न ऑब्टेन किया है. जैसा इलेक्ट्रॉन के लिए आया था वैसा C60 के लिए भी आया. हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा कोऑर्डिनेट चेंज होगा बट पैटर्न वही आया जो वेव शो कर सकती है. तो दैट व्हाट डज इट मीन, इवन C60 व्हिच इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल, और कार्बन के 60 एटम्स हैं साथ में, इट इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल बट इवन इट इज शोइंग अ वेव करेक्टर. सो व्हेन वी टॉक ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर हम पानी की बात करेंगे एज अ मॉलिक्यूल, अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, अगर हम इथीन की बात करेंगे, all these molecules will have a significant wave character. और इसीलिए क्योंकि इनका वेव कैरेक्टर है इसलिए तो हम वाइब्रेशनल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ पा रहे हैं. ठीक है, रोटेशनल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ पा रहे हैं, वहां पर भी क्वांटाइजेशन है. क्यों अब हम रोटेशन इसलिए पढ़ पा रहे हैं, वो वेव से इंटरेक्ट क्यों कर रहा है हमारा एटम, क्योंकि एटम खुद एक वेव है. इफ इट इज इंटरेक्टिंग विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच वी आर शोइंग, वो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके साथ खुद एक एसोसिएटेड वेव है. तो अज्यूम ये मत करना कि केवल बहुत छोटे फोटॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ही वेव होंगे, ऐसा नहीं है. मॉलिक्यूल्स, इवन C60 का तो प्रूवन केस है कि C60 भी वेव है, कि मतलब वेव कैरेक्टर सिग्निफिकेंटली शो करता है. तो इसलिए हम केवल सर्कुलर नहीं पढ़ रहे, हम सब पढ़ेंगे ताकि हमें एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिले, ना केवल ओनली इलेक्ट्रॉन के बारे में. ठीक है. अब देखिए, basically we are now constraining ourselves. Okay? देखिए, जब if I draw a infinite wave, supposedly this is an infinite wave, and just a minute. Okay, so supposedly if I'm drawing an infinite wave,
तो इनफाइनाइट वेव यानी कि एक माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुई है, बहुत पहले से शुरू हुई है, एंड इट इज मूविंग प्रोपेगेटिंग लाइक दिस, ओके, एंड इट विल गो टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, सो अब देखिए, यहाँ पर हमने जब डी ब्रोगली के बारे में पढ़ा था, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, विच इज मोमेंटम, एंड दिस इज द लैम्डा। तो अब अगर आप यहाँ देखिए, अगर किसी भी वेव का लैम्डा सर्टेन है, तो उसका, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो उसका मोमेंटम is certainly हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब if there is no error in determining the lambda or the wavelength, then there will be rather no error or no uncertainty, no error or uncertainty. Basically we are moving towards Heisenberg uncertainty. Okay, so once you know that lambda है supposedly किसी चीज का, अगर वो certainly बिना error के अगर हमने फाइंड किया है, तो हम उसका मोमेंटम भी बिना एरर के फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। अभी लैम्डा देखिए, लैम्डा बेसिकली यहाँ से अगर शुरू होगा तो यहाँ प्रोपोगेट करेगा। अभी कोई भी वेव अगर है, अगर वो इनफाइनाइट वेव है अगर है, तो बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि उनका वेवलेंथ हर जगह पे सेम होना सेम चाहिए। मतलब ऑब्वियसली इट शुड बी हैविंग द सेम वेवलेंथ, बट जितनी बड़ी वेव होगी उसका वेवलेंथ उतना स्पेसिफाइड होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे थोड़ा कभी कभी क्या हो सकता है कि ये थोड़ा ऊंचा हो गया, किसी का थोड़ा नीचे हो गया। ठीक है, बट अगर हमारे पास बहुत बड़ी वेव है, तो उस एवरेज आउट अगर हम करेंगे लैम्डा को, तो लैम्डा जो है वो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, मतलब एवरेज लैम्डा। ओके, फॉर अ लॉन्गर वेव। ओके, एवरेज लैम्डा फॉर अ लॉन्गर वेव विल बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि हम क्या करेंगे बेसिकली, दो ट्रफ्स के बीच में या दो क्रस्ट के बीच में, क्रस्ट के या दो ट्रफ्स के बीच का हम डिस्टेंस देखते हैं बेसिकली लैम्डा फाइंड करने के लिए। अब देखिए क्या, हाँ, तो जैसे जितनी बड़ी वेव होगी, अब उसका लैम्डा उतना स्पेसिफिकली, एवरेज लैम्डा उतना स्पेसिफिक होगा, उतना क्लियर होगा। जितनी छोटी वेव होगी, उसका जो लैम्डा होगा वो उतना अनसर्टन होगा। जैसे अगर सपोजिटली इसका लैम्डा, अगर मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, अगर 10 मीटर है, तो शायद आगे जाके जो लैम्डा हो, ये शायद 10.8 मीटर हो जाए, या 6 मीटर हो जाए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस, मतलब जितनी छोटा छोटा लोगे, बेसिकली 10.6 तो बहुत ज्यादा ही एरर में बोल रहा हूँ, बट मैं आपको ये डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वेव अगर 10 मीटर की एक वेवलेंथ है, तो दूसरा भी वेवलेंथ उसका 10 मीटर ही होगा। ठीक है, देयर विल बी सम चेंजेस इनटू द वेवलेंथ। ऊपर अगर हम जितनी बड़ी वेव लेंगे, उसका वेवलेंथ अनसर्टेनिटी उतनी कम हो जाएगी उसकी वेवलेंथ। ठीक है, जितनी छोटी वेव लेंगे, तो अगर दो ही उसमें वेवलेंथ है, अगर अगर हमने छोटी ऐसी वेव ली है जिसमें केवल दो वेवलेंथ ही आ पा रही हैं, तो उनमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एवरेज करोगे तो 10 और 10.6 का 10.3 होगा। बट वेरस अगर आपने सपोजली बहुत बड़ी वेव ली, और किसी में 9.8 है, किसी का 10.1 है, किसी का 9.9 है, ऐसे ऐसे करके है, तो एवरेज शायद उसका 10 ही रहेगा, 10 पॉइंट समथिंग की रहेगा। वेरस अगर तुम जितनी छोटी वेव लोगे, उसका एवरेज जो है वो बढ़ जाएगा, तो उतना अनसर्टन हो जाएगा, उतना एरर आ जाएगा हमारे एक्सपेरिमेंट में। तो अब क्या हमने क्या क्या किया, बेसिकली अगर हमारे पास लॉन्गर वेव है, वेव हमारे पास लॉन्गर है, तो उसका लैम्डा जो है इट इज वेरी सर्टन। ओके, ओके, इफ लैम्डा इज वेरी सर्टन, सो मोमेंटम इज सर्टन। सिंस मोमेंटम इज सर्टन, सो डेल्टा पी लिख रहा हूं, डेल्टा पी मीन्स द अनसर्टनिटी इन मोमेंटम विल बी जीरो। ओके, uncertainty in the momentum will be zero for a very large longer wave। अब वेरी लॉन्गर वेव में हम दूसरी चीज पढ़ते हैं, पोजीशन। अब हमें पता है कि वेव तो मूव कर रही है। ठीक है, अब जितनी बड़ी वेव होएगी, जितनी बड़ी, अगर इनफाइनाइट इनफाइनाइट बड़ी वेव ले लिए हम, उसका पोजीशन निकालना तो और डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि हमने बोला था टाइम भी है, कंस्ट्रेन है ना, तो हमें पता नहीं है किस टाइम पे वो कहाँ है पार्टिकल। तो जितना लंबी वेव रहेगी, जितनी लंबी वेव रहेगी, क्योंकि वो तो प्रोपिगेट कर रहा है अगर इनफाइनाइट है। ठीक है, हमने उसका मोमेंटम सर्टन कर दिया, क्योंकि लैम्डा सर्टन हो जाता है उससे, लैम्डा से मोमेंटम सर्टन हो गया। बट उसका पोजीशन जो है वो और ज्यादा अनसर्टन हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी वेव है, इतनी बड़ी वेव प्रोपेगेट करिए, वो कहाँ है हमें पता नहीं। तो उसका जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, आई थिंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
तो अनसर्टेनिटी मतलब क्यों अनसर्टन है, इनफाइनाइट है क्योंकि वेव ही इनफाइनाइट है और हर हर जगह पे पॉसिबिलिटी है उस एटम, उस पर्टिकुलर हमारे जो भी पार्टिकल है उसके फाइंड होने की। वेरस क्योंकि लैम्डा स्पेसिफिक है फॉर अ वेरी वेरी हाई वेवलेंथ, उसका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज वेरी जीरो, इज जीरो। सो इसका मतलब ये है कि अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन मोमेंटम जीरो है तो सर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी इनफाइनाइट। ओके, तो यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। वो कहता है कि बेसिकली अगर तुम्हारे पास बहुत बड़ी वेव है तो तुम इसकी जो सम है इसको इक्वल टू ग्रेटर देन h बाय 4 बाय कर सकते हो। ठीक है, तो सपोजिटली अगर डेल्टा एक्स इनफाइनाइट है तो अगर डेल्टा एक्स को नीचे ले जाओगे तो डेल्टा पी अपने आप जीरो बन जाएगा। सिमिलरली अगर डेल्टा एक्स जीरो है, देयर इज नो अनसर्टेन पोजीशन, तो मोमेंटम फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। और ठीक है, अभी हमारा काम यहाँ पर ये है कि ठीक है जीरो इज समथिंग गुड बट इनफाइनाइट इज नॉट गुड। तो अभी हमारा काम ये है कि बेसिकली क्योंकि अगर हमको कोई भी वेव या इक्वेशन पढ़ना है तो एटलीस्ट हमको सर्टन होना चाहिए ना कि वो पार्टिकल उसका कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं है कि वो पार्टिकल कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, अनसर्टेनिटी बहुत है और अगर अनसर्टेनिटी है हमारे पास तो वी विल नेवर बी एबल टू डिटरमाइन द what to say the exact equation of a wave. So what we need to do is to reduce the uncertainty. We cannot obviously make it zero again, क्योंकि जैसे जैसे इसको कम करते जाओगे ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसको कम करोगे ये बढ़ जाएगा। दोनों ऑपोजिटली प्रोपोर्शनल है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब मैं क्या किया, इंस्टेड कि मैं बहुत बड़ी वेव लूं, अब मैंने क्या किया, मैं छोटी वेव ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने छोटी वेव ले ली। अब देखिए इसका जो वेवलेंथ है मैंने बेसिकली इसको बांध दिया, इस वेव को यहां से बांध दिया। इसका जो वेवलेंथ है ये एक ये है और एक ये है। अब इस वेवलेंथ में अभी मैंने बताया कि ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल परफेक्टली परफेक्ट होते हैं, तो देयर इज सम नाउ अनसर्टनिटी इन वेवलेंथ। ओके, अगर वो वेवलेंथ में अनसर्टनिटी है तो इसका मतलब अब हमारे मोमेंटम में भी अनसर्टनिटी है। सो डेल्टा पी इज नॉट जीरो, इट इज अनसर्टन, सो देयर इज सम वैल्यू, इट इज देयर, uncertainty is there. Okay, so once uncertainty is there, ठीक है, वो तो हो गया हमारी बात अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब क्या हुआ बेसिकली, अब क्योंकि अभी हमने इसको कंस्ट्रेन कर दिया, हमने इसको बेसिकली बांध दिया ऐसे। अब क्योंकि मैंने इसको कंस्ट्रेन कर लिया तो अब ऑब्वियसली पोजीशन, इतने बड़े में तो पोजीशन अभी भी थोड़ा डिफिकल्ट है पर इतना डिफिकल्ट नहीं जितना पहले था। पहले तो इन्फिनिट वेव थी तो उसका जो एरर था निकालने का वो इन्फिनिट था, बट अभी देयर इज सम स्पेसिफिक, सो लेटर एक्स इज देयर बट इट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड वेरी लेस देन इन्फिनिट, बहुत कम है। इन्फिनिट तो बहुत ज्यादा था, अभी हमने कंस्टेंट कर दिया तो अब हमारे लिए थोड़ा इस वेव को स्टडी करना इजी है। क्यों, हमारे पास पोजीशन की सर्टेनिटी है थोड़ी, यहाँ पे हम अब बता सकते हैं कि ठीक है थोड़ा छोटा है, अब हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं। हाँ, इसकी वजह से क्या हुआ कि इसको मोमेंटम की सर्टेनिटी बढ़ गई, बट दैट इज ओके फॉर दिस टाइम बिकॉज वी हैव एन इक्वेशन बाय व्हिच वी कैन relate both of them. So what we are doing is, so what we have done right here is that we are basically, we have moved to and we have constrained our particle or whatever particle, it is not just electron, particle in a straight line. Okay, पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन में हमने उसको कंस्ट्रेंट किया। अब इसके लिए हमारे पास वेव इक्वेशन निकालना बहुत ही इजी है क्योंकि अब हमारे पास लिमिट्स हैं। ठीक है, लिमिट्स है। सर्कुलर के लिए भी निकालना इजी है बट वो केवल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास और भी चीजें हैं पढ़ना, पर पहले हम सिंपल चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया है, पार्टिकल को एक ही स्ट्रेट लाइन में कंस्ट्रेन कर दिया है। तो इफ आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज अ स्ट्रिंग बिकॉज आई हैव टू स्टडी अ वेव। ठीक है, सो इफ आई एम अज्यूमिंग कि मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया ऐसे, ठीक है, और उसको दो जगह से कंस्ट्रेन कर लिया है, तो सपोजिटली अगर मैं इसको ऐसे हिलाऊंगा तो ये वेव की तरह मूव करना शुरू हो जाएगी। तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज।
कि बहुत तरीके से मूव कर सकती है। हो सकता है कि इसका मूवमेंट कुछ ऐसा हो, यहाँ से हो रहा है ऐसा, फिर ऐसा, मतलब ऐसा ऐसा कुछ भी मूवमेंट हो सकता है ना उस वाइब्रेशन का, ठीक है। देर आर इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज नाउ, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज, बट what we need to study here is, why do we need here, what do we need here is that we need some constraints. So what we are doing is, अभी इसमें इसमें देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस चीज में प्रॉब्लम ये है, अगर इस तरह से मूव करें तो देर इज नो फिक्स फ्रीक्वेंसी और नो फिक्स लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में रिलेशन है, देर इज नो फिक्स फ्रीक्वेंसी है। कुछ कहीं पर ये वेव कैसे मूव कर, कुछ फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही है, किसी डायरेक्शन में ये वेव कुछ फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही है। बट सपोजिटली अगर मैं इसको इस तरह से घुमाऊं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसको मैं इस तरह से घुमाऊं कि ये ऐसे घूमी पहले, ठीक है, और फिर ऐसे घूमी, ठीक है। नाउ अब इस चीज में ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर रही है। नाउ इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि नाउ फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड, ठीक है। मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत है वेव को मूव करने की, पर हम केवल ये वाली पॉसिबिलिटीज को ही पढ़ेंगे कि जहां पर फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, हर जगह पे फ्रीक्वेंसी फिक्स है ऊपर नीचे होने की। ऐसा नहीं है कि कहीं पर वो हायर फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, कहीं पर लोअर फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है। पॉसिबिलिटीज उनकी हैं और हम उनको नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे केवल उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को जहां पर फिक्स्ड है, फ्रीक्वेंसीज फिक्स्ड। सो ओके, फिक्स्ड है, तो इन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं, अब हम इसी में ऐसी फ्रीक्वेंसी भी ला सकते हैं, ऐसा मूवमेंट भी ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा मूवमेंट भी ला सकते हैं कि पहले ऊपर गया फिर तरफ और का चेंज हो जाएगा, तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी फिक्स है। इसकी और उसकी फ्रीक्वेंसी में केवल इंटीग्रेटल डिफरेंस होगा। जैसे अगर इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है तो इसकी शायद 2 म्यू हो, ओके। ऐसा 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 होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसकी 2.5 म्यू होगी, क्योंकि अगर वो 2.5 म्यू है तो वो वैसे कभी रिलेट ही नहीं करेगा। एक अगर देखिए इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल यानी कि ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है, दिस इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी वेयर, देखिए दैट इज अ फ्रीक्वेंसी, क्यों देखिए एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वेयर इट विल बिहेव लाइक दिस, कि हर पार्टिकल हर जगह पे सेम फ्रीक्वेंसी है, ऐसी फ्रीक्वेंसी ये, और इन्हें हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। दिस इज अ स्टैंडिंग वेव, व्हाई इट इज अ स्टैंडिंग वेव, इट इज हैविंग फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, सो इवन दिस इज अ स्टैंडिंग वेव। जो हमने पहले बोला कि बहुत अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव, दैट इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, स्टैंडिंग वेव्स हैव फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। अब स्टैंडिंग वेव में भी द लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑन विच स्टैंडिंग वेव विल मूव इज बेसिकली फंडामेंटल। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज कैसी होगी, एक बार ऊपर गया फिर एक बार नीचे आया, एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया। और बाकी पॉसिबिलिटी जैसे ये वाली है, तो दिस इज नॉट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बिकॉज इसमें हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसमें हमको उतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, तो इट इज कॉल्ड ओवरटोन। Similarly, there are possibilities of the same frequency with higher energies. Okay, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी पर इंटीग्रल हो जाएगा उसका, 3 में हो जाएगा। तो उन्हें हम बोलेंगे सेकंड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, आपको पुनीत ने मॉलिक्यूलर में पढ़ाया है। तो दिस इज अ स्टैंडिंग वेव। सो व्हाट वी आर मूविंग नाउ, वी आर मूविंग टू अ पार्टिकल इन अ लाइन, and what we need to do is not study every frequency which is possible by confining the particle in a line. What we need to do is to study those frequencies where our particle is behaving like a standing wave. Why? Because generally it is observed that for electron, for atoms, for molecules, they move with a fixed frequency. They have a same frequency. It is observed. इसलिए हमने बाकी फ्रीक्वेंसीज को छोड़ दिया। हमारा एटम क्योंकि फिक्स फ्रीक्वेंसी से घूम कर रहा है, इसलिए हमारे पास स्टडी करने के लिए भी ऐसी स्ट्रिंग होनी चाहिए जो फिक्स फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही है। तो ये हमारा, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर मूविंग टू दिस, व्हाई डिड वी मूव टू अ स्टैंडिंग वेव, व्हाई इज ओनली दीज पॉसिबिलिटीज which we are going to study. There are other possibilities but no need to study because frequency फिक्स करनी है, क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में जो भी हम पढ़ेंगे उनकी फ्रीक्वेंसीज फिक्स रहती है, इसलिए हम यहाँ से पढ़ेंगे। और अब हम क्या करेंगे, बेसिकली पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में इसलिए क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो जाएगा,
तो पार्टिकल को बॉक्स में रखेंगे इन अ 1D बॉक्स. Basically it is a straight line, so we'll be limiting it. Suppose it is 0 12 and this is particle here, and if so to basically we have a string, हम तो उसको string की तरह ही मानते हैं. तो ये string है, तो फर्स्ट मूवमेंट शायद इसकी ऐसी होगी, फिर शायद हायर एनर्जी में वो हमारा पार्टिकल जो है वो हायर एनर्जी में ऐसा मूव करेगा, और हायर एनर्जी में दूसरे तरीके से मूव करेगा वो हमारा पार्टिकल. सो वी हैव बेसिकली confined our particle to a box. Particle in a box. Why we are doing it? Simplify करने के लिए. So सिंप्लीफाई कर दिया हमने. क्या किया, और देखिए हमने क्या किया, हमने बाउंड्री कंडीशन लगा दी. बाउंड्री कंडीशन लगा दिया तो फर्स्ट वीडियो से आपको समझ आना चाहिए कि वंस यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री से क्या हो जाता है, क्वांटिटी हो जाती है. ओके, सो दिस इज, so why we are studying a particle in a box? Particle in a box, why is it important? अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है, because this is the gateway. ये सिंपल है, गेटवे टू क्वांटम. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर मूविंग टू अ पार्टिकल इन मंडी बॉक्स. इसलिए मैंने आपको सीधे शॉर्टकट क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, ताकि आपको समझ तो आए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं पार्टिकल इन द मंडी बॉक्स. ठीक है, सो दिस इज आवर गेटवे टू क्वांटम. दिस इज द सिंपल वे बाय विच वी कैन नो अबाउट अ वेव, and then we'll look into what are the possibilities that can happen with an atom. Obviously electron is not going to behave like this. Electron is not going to move in a straight line, but yes, atoms, molecules can move in a straight line. तो ये हमको एटम्स के लिए सही होगा. सपोज ये ट्रांसलेशनल मूवमेंट है, ठीक है, अगर आपको ट्रांसलेशनल एनर्जी पढ़नी है, ट्रांसलेशन मोशन पढ़ना है एटम का, तो तब हम इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं. सपोज इलेक्ट्रॉन भी ऐसा है कि सपोज मॉलिक्यूल इतना बड़ा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं वहां पर, तो हम तब अज्यूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज नाउ, सिंस इट इज मूविंग लाइक दिस फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम्स, ऐसे फ्लो कर रहा है एटम इलेक्ट्रॉन, तो तब हम उसको बोलेंगे कि इट इज अज्यूम टू बी टू अ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो और वो होता भी है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी हैं काफी चीजें ऐसी. तो सो बेसिकली वी हैव jump to this. So thank you so much for watching this video. I'll be putting my next video after some time because I'm basically going to my duty. So hope you learn, and हम आपसे कम्युनिटी में क्वेश्चंस पूछते रहेंगे so that you get involved into this channel. So thank you so much for watching this video.